सत श्री अकाल सारे नु। I am Sarthak and I welcome you to Civil with Akash Chanakya IAS Academy. Today's lecture is on ethics. This is lecture 4. We have started lecture series for you. Already 3 lectures have been done and I request you all, if you haven't watched those lectures, first watch those lectures and then you can come on to this video. Right? So without wasting any time, let's straight away start our video. Okay. ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਣਕਿਆ ਆਈਐਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਨਸ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਕਸ what does it includes? It includes printed notes, right? Plus that, besides that, you will also be getting mains test series, and the price will is very affordable at just rupees 8,000 rupees. In 8,000 rupees you will be getting test, right, plus printed notes. And you all know that tests are very important for all those students who are appearing for Punjab PCS mains, which is going to be held in April as per the official notification, and that is final. And I am hoping that you all are very well prepared for it now, right? And you are preparing for it as well. And if you want only the mains test series, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ mains ਦੀ test series ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ available ਹੈਗੀ ਆ only at rupees 5,000 rupees. ठीक है, this test series have been designed very thoroughly. These printed notes as well, right? It has been prepared under the guidance of very intellectual people, right? As you can see the names of all those people, I am not repeating of that for you, but what I can assure you, it is a very good test series and the printed notes are very well prepared. So even if you like it, you can go for it, otherwise it's your choice, right? But if you ask me, you should definitely go for it. Okay, right? As in all my lectures, I used to show the syllabus first, just as a reminder also, like ethics is how important in Punjab PCS mains, right? We cannot ignore it. Sanu jama bhi ignore nahi karna chahiye. GS1, GS2, right? GS4 is, okay? You will find some parts, some sections related to ethics. We are covering the first section right now, essence and ethics and society. We have covered essence, we have covered determinants, and we are on the part of we have covered in fact consequences as well. Today we will be covering what? Dimensions of ethics, right? ठीक, चलिए. So let's start. Okay. Before that, ठीक है. Before that, today I have bring a question as well. आज एक question तो start कर दें आपा. Let's see a previous year question. ठीक है. This is a previous year question that has been asked in Punjab PCS mains. Straightforward question. ठीक है. Question ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫॉरवर्ड क्वेश्चंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ठीक है. सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, राइट? फॉर एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर, डिफाइन ethical dilemma, right? Then next part, this is the first part. Second, discuss some common ethical dilemmas that arise for those holding public offices, right? And you have to write it under 200 words. Yes or no? All right. So as you can see, there are two parts to the question. There are two parts in this question that we have to deal with. First is you need to write what is ethical dilemma, right? And the second part is, right, the ethical dilemmas. You need to describe the ethical dilemmas faced by the public servants. Faced by public servants. You can say civil servants, officers, bureaucracy in an organization, in a public organization. What are the general ethical dilemmas that you face? Right? Good question, easy at the same time, and in the same pattern itself. As expected, in the same pattern only you will be facing questions in this year as well. But you need to be prepared for each and everything. How will you prepare all that? Syllabus, ठीक है. Syllabus चंगे तरीके नाल कवर करके जाइए, ठीक है.
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਚੀजें ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਈਏ ਵਾਪਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾर्ट ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਥੀਕਲ ਡਿਲੇਮਾ ਤੇ ਐਥੀਕਲ ਡਿਲੇਮਾਸ ਫੇਸਡ ਬਾय ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ। तो स्टार्टिंग ही ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्राइब करना होगा व्हाट इज एथिकल डिलेमा, की ਹੁੰਦਾ एथिकल डिलेमा, राइट। बहुत सिंपल, इट्स अ डिलेमा बिटवीन टू moral principles of yours, लाइक मतलब क्राइसिस हैगा, ठीक है, क्राइसिस है, दो सिचुएशंस है, दोनों एथिकली करेक्ट बैठ रही हैं, आपका मॉरल जो है वो उसको करेक्ट बैठा रहा है, ठीक है, दोनों की दोनों एथिकली करेक्ट है, एंड यू नीड टू चूज बिटवीन देम, और वो चॉइस करनी बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर एक आपकी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक सही है, एक गलत है, उसमें चॉइस करना बहुत इजी है, यू विल गो फॉर द करेक्ट वन, राइट, जो एथिकली करेक्ट बैठे। बट जब दोनों ही एथिकली करेक्ट होंगी, उसमें चूज करने में सिचुएशन में फंस जाओगे आप, वहां प्रॉब्लम आती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एथिकल डिलेमा, एथिकल क्राइसिस भी बोल सकते हैं इसको, राइट। लेट्स सी। हम्म, see, an ethical dilemma is a situation where a person or entity must choose between two or more conflicting ethical principles or values. Yes or no? Simple as that. ठीक है, डिफाइन कर दिया हमने, एक एग्जांपल भी दे देंगे, फॉलोइंग द ट्रूथ वर्सेस बीइंग लॉयल टू अ बेस्ट फ्रेंड। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल चूज कर सकते हैं यहाँ पर। यस और नो? ठीक है, यहाँ पर क्या है, आप एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो फ्रेंड है उनके साथ या तो लॉयल रहेंगे या फिर ट्रूथफुल रहेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने ऐसी आती है, राइट, कि अगर आप उनका सच्चाई का सामना उनसे करा दें, सच्चाई का सामना करा दे तो उनके लिए बहुत मुश्किल प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है, बट आपको लॉयल भी रहना एट द सेम टाइम। सो दिस इज विट सिंपल है। एथिकल डिलेमा क्या है, जब आप दो कंफ्लिक्टिंग एथिकल प्रिंसिपल और वैल्यूज के बीच में फंस जाए, यू नीड टू चूज बिटवीन दीज टू, and it is not practically possible to do that because both are equally correct at the same time. So how will you do that, right? That is why it is called as ethical dilemma. You need to choose, आप choose तो करोगे, definitely you will have to go for depending on the situation, ठीक है, you will assess the situation and then you will do that. Actually what happens is in an ethical dilemma, ठीक है, इफ यू चूज, आप कोई भी चीज ऑप्शन चूज करेंगे, दूसरा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, बट स्टिल यू विल हैव टू डू दैट इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, स्पेशली व्हेन यू आर पब्लिक ऑफिसर, यू विल हैव टू गो, आपको वही समहाउ मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू इन एथिक्स, ठीक है, वही आपको समहाउ मैनेज करना पड़ता है। वहां पे सबसे ज्यादा पता है क्या काम आता है, व्हाट एक्चुअली कम्स हैंडी एट दैट पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो बहुत काम आएगी आपके उस पॉइंट में। जब भी एथिकल डिलेमा से फंसते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन के अंदर आपसे ये चीज नहीं पूछी, क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछा है कि व्हाट इज एथिकल डिलेमा एंड व्हाट आर द जनरल एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, आपको सिर्फ उसी पे स्टिक रहना है। अगर वो आपसे ये पूछते कि अगर आप एथिकल डिलेमा में फंस गए हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नीड टू शो व्हेन यू आर फेस्ड बाय सच सिचुएशन, द आंसर शुड हैव बीन लाइक द फर्स्ट पॉइंट शुड हैव बीन इमोशनल इंटेलिजेंस। सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस से काम नहीं चलेगा, और भी क्वालिटीज चाहिए, और भी वैल्यूज के साथ आपको खड़े रहना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट पे। क्लियर? ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट्स। फर्स्ट वन, कंफ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सी, आपके सामने मैंने बिल्कुल उसी वे में लिखा है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रहे, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका इनफैक्ट यूपीएससी में भी रिपीट हो सका है, थीम्स डेफिनेटली रिपीट होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आपको रिपीट होता है, किसी ना किसी फॉर्म में दिख सकता है कि एथिकल डिलेमा पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक वन आई जस्ट फ्रेंड फॉर यू, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक, पॉइंट जरूर आपके दिमाग में होने चाहिए, राइट। ओके, देन फर्स्ट, कंफ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, सबसे बड़ा डिलेमा यही आएगा आपके सामने। क्या आएगा, देयर आर सिचुएशंस जहां पर आप इंडिविजुअल्स का पर्सनल इंटरेस्ट टेंड टू कॉम्प्रोमाइज द पब्लिक इंटरेस्ट और वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल, कि आपने मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है, मूवीज में भी जनरली दिखता है कि जो विलन होते हैं
जो ऑफिसर्स के साथ से अगर कुछ इलीगल काम वो करवाना चाहते होते हैं तो उनको उनकी फैमिली पे अटैक करने का धमकियां देते हैं, ठीक है, कि भैया हमारा ये काम करो, नहीं तो आपकी फैमिली को हम नुकसान पहुंचाएंगे, हार्म पहुंचा देंगे। तो वहां पर जो है उस ऑफिसर का पब्लिक इंटरेस्ट, राइट, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो करना चाह रहा है, जो उसकी ड्यूटी बनती है, वो उसके पर्सनल इंटरेस्ट के आगे आड़े आ जाती है, वहां पे एक एथिकल डिलेमा में फंस जाता है। बिकॉज एथिकली दोनों चीजें उसके लिए करेक्ट हैं कि उसको अपनी फैमिली के भी सेफ, अपनी फैमिली को भी सेफ रखना है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसको अपनी इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करके रखना है अपने वर्क प्लेस के ऊपर। तो दो एथिकल प्रिंसिपल्स के अंदर वो फंस जाता है, कंफ्लिक्ट आ जाता है। यहीं पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, द ड्रग माफिया कन्फ्रंटेड अ पब्लिक सर्वेंट हु इन्वेस्टिगेटेड ड्रग ट्रेडिंग नियर स्कूल, थ्रेटनिंग immediate consequences and potential family safety if he disclose the crime। yes, ठीक है, चलो ये हो सकता है। देन conflict between personal ethics versus professional ethics, ठीक है, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स क्या मतलब? सिविल सर्वेंट्स माइट एनकाउंटर सिचुएशन इन विच प्रोफेशनल ड्यूटी डिमांड्स वेरिएशन वायलेशन ऑफ पर्सनल एथिक्स और वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल, a public servant who is an animal lover is tasked with the oversight of curbing the stray dog issue। ये क्या है बेसिकली? आपके एथिक्स और आपकी मोरालिटी कहीं ना कहीं आपके आगे आ जाती है, राइट। फॉर एग्जांपल कि स्ट्रे डॉग्स से रिलेटेड कंप्लेंट आई, ठीक है, अब आपकी यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स क्या बोलेगा आपको कि भैया आपको अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है, आप गए, आपको स्ट्रे डॉग्स को हटाना है, यस, बट आपके पर्सनल एथिक्स क्या कहते हैं कि यू नीड नो हार्म टू एनिमल्स, यानी एनिमल्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाना। तो वहां पर आप फंस जाओगे दो कंफ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स में। तो यू कैन डेफिनेटली कोट दिस वन एज वेल, राइट। ओके, ऐसे ही आंसर बनाना है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हो, इट इज जस्ट वन वे, आप कैसे मर्जी लिख सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट ऑल यू नीड टू राइट द आंसर। हमेशा जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, पहले क्वेश्चन को डिड्यूस करना है कि क्या क्या पूछा हुआ है उसके अंदर, राइट। हमने वो डिड्यूस करा कि इसमें दो पार्ट थे, पहला हमसे पूछा कि एथिकल डिलेमा क्या है, दूसरा हमसे पूछा कि हमने जो पब्लिक सर्वेंट है कौन से एथिकल डिलेमास फेस करते हैं जनरली, ठीक है। हमने पहले का आंसर करा, अब दूसरे का आंसर कर रहे हैं, स्ट्रेट क्लियर। ओके, देखते हैं और भी कुछ, क्योंकि 200 वर्ड्स में लिखना, यू नीड मोर पॉइंट्स एज वेल। देन ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी, ये क्या चीज है? ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस का एस्पेक्ट है, ये दोनों ही है कि आपको पब्लिक के आगे, ठीक है, पब्लिक के आगे आपको ट्रांसपेरेंट, तीन चीजें होती हैं एज बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, यू नीड ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपको तीनों चीजें मेंटेन करके रखनी होती हैं, यस। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम आपको जो पब्लिक गवर्नमेंट के सीक्रेट्स है, अपने ऑफिस के सीक्रेट्स है, वो भी जरूरी है आपको प्रोटेक्ट करके रखने। यू कैन नॉट लाइक आप बाहर इनको रिवील नहीं कर सकते, दोनों चीजें मेंटेन करके रखनी होती हैं। सी वहीं यहाँ पर वहां पर फंस जाओगे अगेन एथिकल डिलेमा में कि पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट स्ट्राइव टू टेक डिसीजन, public servants must strive to take decision in a transparent manner, but at times secrecy is needed due to the confidentiality of affairs। for example the RTI, ठीक है, RTI सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है इसका कि RTI किसके लिए है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सिटीजन को प्रोवाइड किया हुआ राइट टू नो अबाउट द पब्लिक पॉलिसीज, उनसे क्वेश्चन कर सकते हो आप। लेकिन वहां पर क्या हर चीज पूछी जाती है? नहीं। हर चीज बता सकते हैं? नहीं। देर आर सर्टेन एक्ट्स, ठीक है, लाइक लिमिटेशन इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी बाय द वे कई बार होता है, बट अपने क्वेश्चन तक स्टिक रहे तो आप डेफिनेटली इसको कोट कर सकते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर क्या है कि हम जो पब्लिक सर्वेंट है वो रिवील करने से मना कर सकते हैं, ठीक है, कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमें अलाउ नहीं करती कि ये चीज आपको बताई जाए, बिकॉज कई सीक्रेट एक्चुअली हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि रिवील नहीं करे जा सकते, यस और नो, बट ये इसका मिसयूज भी बहुत होता है तो यहाँ पर फंस जाते हैं। ओके, देन whistle blowing against unethical whistle blowing against unethical conduct versus goodwill of the institution। अब ये इन जनरल लाइक एज एन ऑफिसर अगर आपको दिखे, ठीक है, कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ अनएथिकल हो रहा है उनकी आंखों के सामने, तो क्या वहां पर एज अ विसल ब्लोअर उनको उस चीज के अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए, राइट, या फिर अगर ऐसा ना करे तो उससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशन की गुडविल मेंटेन रहती है, ठीक है, या फिर उनको वो वाला काम करना चाहिए। तो यहाँ पर अगेन एक एथिकल डिलेमा आ जाता है। While whistleblowing can curb unethical conduct,
It can affect the reputation of the institution, yes, but staying silent will encourage unethical practice. दोनों चीजें हैं, विसल ब्लोइंग करेंगे ठीक है तो वहां पर रेपुटेशन पे हार्म आएगा, लेकिन अगर चुप रहेंगे तो अनएथिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आपको उसके अगेंस्ट हमेशा आवाज उठानी चाहिए, एथिक्स यही बताता है आपको, दैट इज द राइट थिंग टू डू। ठीक है, सो एग्जाम्पल, द फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड साइड लाइनिंग फेस्ड बाय अशोक खेमका जी। सबको पता है अपनी लाइफ में इन्होंने 53-54 ट्रांसफर्स के अराउंड, हरियाणा के आईएएस ऑफिसर है। फॉर एक्स इन्होंने क्यों इनको ट्रांसफर फेस करने पड़े, बिकॉज बहुत बड़े विसल ब्लोअर थे, अपने एथिक्स इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं हमेशा, तो यहाँ पर फंस जाते हैं ये। ठीक, ओके आगे देखते हैं। और देन इज कंफ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। जस्टिस बेसिकली यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, सोशल जस्टिस। बहुत बार ऐसे इंस्टांसेस आएंगे आपके सामने जब आपको लॉ को फॉलो करना है, लीगैलिटी को फेस करना है, बट आपको पता है कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो सोशल जो आप चाहते हैं इक्विटेबल नहीं होता कहीं ना कहीं, स्पेशली जो पुअर्स के ऊपर आपको दिख रहा होता है उसका हार्मफुल इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, eviction drives in slums may adhere to legal orders but displace vulnerable populations creating a conflict for civil servants, right? कि आपको ऑर्डर मिले हैं कि ये स्लम एरिया है जहाँ पर इलीगली कुछ आपके बंदे रह रहे हैं, इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, आपको उनको हटाना है। अब और लीगल लॉ अपने अपने ऑर्डर को फॉलो करा, लॉ को फॉलो किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया और आपने उनको इविक्ट तो करा, बट एट द सेम टाइम इट आपको दिखा कि वहां पर बहुत सारे स्लम डिवेलपर्स, वल्नरेबल पॉपुलेशन जो थी वो होमलेस हो चुकी है अब। ठीक है, तो क्या ये सोशल जस्टिस आएगा? नहीं, तो वहां पर आप फंस जाओगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल एग्जांपल देने हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। देन इज पब्लिक एक्सपेक्टेशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज। ऑल राइट, एज अ पब्लिक ऑफिसर जब आप बनते हैं, ठीक है, लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हो जाती हैं कि ये हमारे लिए सब कुछ करके दिखाएंगे, इनके पास बहुत पावर है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इतना फंड रिलीज कर सकते हैं। बट रियलिटी हिट्स व्हेन यू जॉइन द एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारी लिमिटेशन दिखती हैं आपको, प्रैक्टिकलिटी दिखती है आपको, रियलिटी से फेस करते हैं आप, राइट? कि लाइक फ्लड्स आ गए कहीं पर, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फटाफट सारा को सारा वहाँ पे रिलीफ प्लान पहुंचाया जाए, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, फूड शेल्टर ईच एंड एवरीथिंग, बट लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो वो रियलिटी है, उसको फेस करते हैं आप, राइट? सी डिले इन फूड रिलीफ एफर्ट्स में लीड टू पब्लिक क्रिटिसिज्म डिस्पाइट लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप थोड़ा नीचे ही लिखना। ठीक है, यहाँ पर एथिकल डिलेमा की बजाय थोड़ा यहाँ पर रियलिटी जो है उससे ज्यादा फेस करते हो आप। एथिकल डिलेमा आएगा जब तो एथिकल उसके अंदर फंस जाओगे आप। यहाँ पर आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी भी एक एथिक्स ही है जो फॉलो करनी है अपने आप को। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। नहीं समझ आ रहा, डाउट आ रहा है, पूछ लेना। ठीक है, इट इज वन वे ऑफ राइटिंग इट। नेक्स्ट, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर, सी इतना आप लिखा है ना एग्जाम के अंदर, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कम से कम 9 to 10 मार्क्स यू विल बी इजीली गेटिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सी वैल्यूज हो चुकी हैं हमारी, फटाफट आगे बढ़ते हैं। एथिक्स हो गया, मॉरल्स हो गया, ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट, दीज डन डन, एसेंस डन, राइट, एंड आई होप आपको समझ भी आया होगा, डिटर्मिनेंट्स डन। ठीक है, ओके ओके, चलो एनालिसिस आल्सो डन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स आल्सो डन। ठीक है, यस यस, चलो डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ एथिक्स की। When we talk about dimension of ethics, there are basically, ठीक है, normative ethics or you can say prescriptive ethics, ठीक है, then is descriptive ethics, then is your meta ethics, and the last one is applied ethics.
इफ यू आस्क मी एज फॉर द एग्जाम की जब एग्जाम की गल करिए, ठीक है, सो दीज टू एथिक्स, दीज टू डायमेंशन ऑफ एथिक्स, नॉर्मेटिव एज वेल एज अप्लाइड एथिक्स, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को और मेटा एथिक्स को, बट स्टिल वी विल कवर, फटाफट देख लेंगे एक बार इसको, इन केस अगर एग्जाम में आता भी तो यू शुड हैव समथिंग टू राइट, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मेटिव और यू कैन से प्रिस्क्रिप्टिव, एंड देन इज योर अप्लाइड एथिक्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मेटिव एथिक्स व्हिच इज आवर द टॉपिक, ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स की जब बात करते हैं, और यू कैन से प्रिस्क्रिप्टिव, it is also then further divided into three sub dimensions. First one is your teleological, या फिर teleology कह सकते हैं आप, ठीक है, और it is also called as consequentialism. Then is your deontology, right, and the third one is virtue ethics, right. And so now we will be starting with teleology ethics, but first let us recall what is normative or prescriptive. See, normative है जो अपना, it has been formed from the word norm. नॉर्मेटिव जो है, ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स नॉर्म वर्ड से बना है। सो व्हाट इज नॉर्म नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट, ठीक है। सी, नॉर्म और वैल्यू आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट। नॉर्म और वैल्यू आपस में क्या है, इंटरलिंक है। कैसे? सी, नॉर्म वो वाला एक्शन है जो कि वैल्यू को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। यस, फॉर एग्जांपल, लाइक देयर इज अ वैल्यू दैट वी नो टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, respecting your elders. This is a value that we have been taught since birth, ठीक है, कि that we need to respect our elders. But how will actually आप दिखाते हैं, gesture कैसे दिखाते हैं? By touching the feet. तो ये नॉर्म सेट कर दिया गया है सोसाइटी के द्वारा कि जहां पर आप ये वाली वैल्यू को शो करेंगे, ठीक है, दैट यू डिस्प्ले। तो नॉर्म हो गया ये, टचिंग द फीट इज अ नॉर्म, यस और नो, राइट, ओके। इन दिस सेंस देयर आर लॉट, मतलब आई होप आपको नॉर्म समझ आ रहा होगा कि नॉर्म क्या है, बेसिकली वो वाले एक्शंस हैं जो कि आपको वैल्यू को अचीव करने में हेल्प करेंगे, राइट, दे आर द मार्चिंग स्टेप्स टुवर्ड दैट। क्लियर है? सो नॉर्मेटिव क्या हो गया आपका, नॉर्मेटिव बेसिकली यहाँ पर आपको क्या वर्ड मिला, एक इंपॉर्टेंट एक्शन। नॉर्म क्या है, वो वाले एक्शंस हैं जो कि वैल्यू को अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। दैट इज द रीजन यहाँ पे वर्ड नॉर्मेटिव यूज किया है। क्यों? नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होगी आपकी, एक्शन ओरिएंटेड एथिक्स होती है ये। की मतलब होता है कि लाइक इट डिस्क्राइब्स, इट टेल्स यू व्हाट आर एक्शन यू नीड टू डू टू बी एथिकल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एथिक्स ਆਪਾਂ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई सिचुएशन ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਜਦ ਨੂੰ एथिकल प्रूव करना है अपने आप ਨੂੰ, ठीक है। हम एथिक्स पढ़ क्यों रहे हैं कि सो दैट वी नो what is the right thing to do and what is the wrong thing to do in a particular situation, and normative ethics does that, it tells you the action, ठीक है। यहाँ पर आपको वो वाले एक्शन ही बताए जाएंगे। नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब कि आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या काम करना चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू एंड व्हाट इज द रॉन्ग थिंग टू डू, एज सिंपल एज दैट। व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव? बिकॉज कल भी मैंने आपको बताया था, प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर वर्ड आया है प्रिस्क्राइब। जस्ट एज द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन, राइट, कि ये कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये दवाई लेनी है, आपको ये पर्टिकुलर खाना खाना है सो दैट आपकी तबीयत ठीक रहे। इन द सेम वे ये वाली डायमेंशन एथिक्स की आपको वही बता रही है कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्टिव एज वेल। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो आपको नेम समझ आया। पहले पे आते हैं, सबसे पहला जो है वो क्या था अपना, टीलियोलॉजी। ये भी बाय द वे हमने कल देखा जरूर था, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी। टीलियोलॉजी जो है आपका वो कौन से वर्ड से बना है, टीलियो। उसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन, अकम्प्लिशमेंट, यू कैन से अकम्प्लिशमेंट,
या फिर रिजल्ट, हेंस द नेम टेलियोलॉजी विच मीन्स, या फिर एंड रिजल्ट, इन टेलियोलॉजी दैट इज द रीजन एंड रिजल्ट मैटर्स, एंड्स जस्टिफाई मीन्स, याद आ रहा है कि आपका जो एक्शन है, ठीक है, आपका जो एक्शन है अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है, उसका रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है, उसके जो कॉन्सिक्वेंस है बेसिकली वो अगर सही है, वो जस्टिफाई है, वो एथिकल है, वो अच्छा है, वो गुडनेस लेके आ रही है, वो हैप्पीनेस लेके आ रही है, तो वो आपका एक्शन जस्टिफाइड है, वो सही है, एज सिंपल एज दैट। यस और नो? हु आर द मेन प्रोपाउंडर्स? मेन प्रोपाउंडर्स कौन है टीलियोलॉजी के? सी, टीलियोलॉजी को कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है, क्यों? बिकॉज इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस मैटर करती हैं, कि कॉन्सिक्वेंसी क्या है, आपके एक्शन की कॉन्सिक्वेंसी क्या है, अगर वो पॉजिटिव है, वो सही है, वो गुड है, तो वो सही है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंशलिज्म ऑल्सो। अच्छा, तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि इसके मेन प्रोपाउंडर कौन है? सी, टेलियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर इसकी एक सब थ्योरी आती है, टेलियोलॉजी के अंदर भी आपके तीन इसके सब थ्योरीज आएंगी, यूटिलिटेरियनिज्म, हेडोनिज्म एंड इगोइज्म। क्या हमें तीनों के तीनों पढ़ने हैं? नो, आपको यूटिलिटेरियनिज्म सिर्फ समझ आना चाहिए, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं, वो फिलोसफी का पार्ट आ जाता है, एथिक्स में इतना काम नहीं है उनका, अपने लिए यूटिलिटेरियनिज्म इज इनफ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, एक थ्योरी आती है यूटिलिटेरियनिज्म, एंड हु आर द मेन प्रोपाउंडर्स ऑफ दिस? देयर आर टू पीपल, बेंथम एंड जेएस मिल। जेएस मिल जो थे बेसिकली बेंथम के ही प्यूपिल थे, इसी के चेले थे, इसी के फॉलोवर थे। बेंथम वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म दिया था, और काफी ज्यादा उसको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था बाय द वे बेंथम को, और जेएस मिल उनके फॉलोवर थे, तो उसीलिए उनको लगा भैया इनकी जो थ्योरी है इसको बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो लेट्स कुछ ऐसा चेंज किया जाए कि इनकी थ्योरी अच्छी लगे लोगों को। बट उन्होंने इतनी ज्यादा उसको चेंज कर दिया था कि उसका मतलब ही खत्म हो गया था, राइट? तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने के चक्कर में बिल्कुल ही काम खराब कर दिया था। यस और नो? ओके, एक जस्ट एक बताना चाह रहा था आपको कि मे बी इस तरीके से आपको याद रह जाए। ओके, तो अच्छा, अब थ्योरी पे आते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म पे। व्हाट डज इट मींस? यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है ये यूटिलिटी वर्ड से बनी है। इट चेक्स इट चेक्स द यूटिलिटी ऑफ एन एक्शन, कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी, उसका जो कितना वो पर्पस यूजफुल है कि नहीं है। यूजफुल इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि डज इट ब्रिंगिंग गुडनेस, हैप्पीनेस, मतलब इसके लिए बोला जाता है कि ग्रेटेस्ट गुडनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ये बेसिकली बेंथम ने बोला था, ग्रेटेस्ट नंबर। आपका जो एक्शन है अगर वो ये अचीव कर पा रहा है, उससे इसकी ये यूटिलिटी है, ग्रेटेस्ट गुडनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, तो वो सही है। क्लियर है कि आप जो भी कुछ काम करें उससे ज्यादा लोगों को खुशी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कल बताया था फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कि ट्राइबल एरिया है एक, ठीक है, वहां पर क्या करना चाह रहे हैं, वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है गवर्नमेंट, उससे प्रोस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमी बूस्ट होगा, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बहुत फायदा होगा। बट उसके लिए वहां पर जो ट्राइब्स है उनको उनका घर आपको उजाड़ना पड़ेगा, ठीक है, डिफोरेस्टेशन होगी, वहां पर ट्राइब्स डिसाइड कर रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यूटिलिटेरिज्म क्या कहेगा कि भैया इस पर्पस के से की यूटिलिटी अच्छी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी, ठीक है, प्रोस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा उनको, तो ये स्टेप आपका सही है, भले ही इसके लिए ट्राइब्स का काम खराब हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें जस्टिफाई किया जा रहा होता है। आई होप समझ आया होगा। ठीक, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं एक बार, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स, normative ethics are those theory that prescribe what is the right thing to do, especially in times of moral dilemmas or confusions.
There are broadly three schools of thought in normative ethics: teleological, deontological, and virtue ethics. Okay, सी नॉर्मेटिव के अंदर तीन आपके स्कूल्स हैं, राइट? चलो, टेलीलॉजिकल एथिक्स थ्योरी यहाँ पे क्या डेफिनेशन क्या कह रही है? टेलीलॉजिकल एथिक्स Teleological ethics state that those actions are ethical which lead to the right ends, that is, consequences. Yes or no? This school of thought justifies the actions of Robin Hood. कौन था रॉबिन हुड? ठीक है, बैटमैन का चेला था। क्या करता था वो? अमीरों को लूटता था और गरीबों में पैसे बांट देता था। ठीक है, तो यहाँ पर यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहेगी या टेलीलॉजी क्या कहेगी? भैया उसका एक्शन जस्टिफाइड है, उसके एक्शन लोग बहुत सारे लोगों की लाइफ में खुशियां लेके आ रहा है। ठीक है, भले ही उसका मीन्स गलत हो, मीन्स मतलब वो अनएथिकल हो, कि स्टीलिंग स्टीलिंग इज एन अनएथिकल एक्ट, राइट? हम बोलते हैं कि लाइंग, स्टीलिंग, ये क्या अनएथिकल है, ऑल्दो वो परफॉर्म वही कर रहा है, एक्शन उसका वही है, बट इट इज जस्टिफाइंग हाउ, बिकॉज एंड रिजल्ट इज गुड, a lot of people are getting benefited from him which needs help, who needs help. ठीक है, in that sense it has been justified. Okay, utilitarian philosophers like Jeremy Bentham and John Stuart Mill, Bentham and Mill, claim that the right course of action is one which leads to greatest good of the greatest number and hence justifies acts like welfareism, big dams, etc. I hope यहाँ पर वेलफेयरिज्म का मीनिंग आपको पता होगा। ठीक है, इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसेस में, तो ये कौन से वेलफेयरिज्म की बात हो रही है? आई एम होपिंग कि आप नो, इफ यू नो देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। एक वन लाइनर के अंदर, ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना इस पे, सिर्फ एक लाइन के अंदर आप सिर्फ लिख दीजिए इसके बारे में। ओके, चलो आगे बढ़े। सी, नेक्स्ट थिंग इज, अभी तो सिर्फ हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे कि देर, बट देर इज सम क्रिटिसिज्म एज वेल फॉर दिस डायमेंशन। बिगेस्ट इज कि इट इग्नोर्स माइनॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल का कुछ नहीं है, जो ज्यादा है उनका काम होना है, बात खत्म। ठीक है, माइनॉरिटी व्यू है इधर, माइनॉरिटी सॉरी मेजोरिटी व्यू आएगा, माइनॉरिटी को निगेट किया जा रहा है। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस। देन इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं हर चीज का, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे आप हर चीज का। ये इनफेक्ट आपको भी डिओंटोलॉजी करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, वहां पर समझ आएगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या क्या मतलब है। ठीक है, देन नॉट दैट इजी टू कॉम्प्रीहेंड, नॉट दैट इजी टू कॉम्प्रीहेंड, कि आपको हमेशा अपने एक्शन को जज करना है, राइट? नॉट दैट इजी टू कॉम्प्रीहेंड, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, बिकॉज आपका एक्शन आपको यही जज करना है कि हैप्पीनेस लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको वहां पे डिसाइड करना है, किसी के लिए कुछ है तो किसी के लिए कुछ है, इट मे वेरी। ठीक है, आप किसी भी वे में जस्टिफाई कर सकते हैं इसको, यस और नो? तो दीज आर सर्टेन criticism points of teleological ethics. So now let's move on to the next dimension, which is deontological ethics. Hmm. So deontological ethics, ये कौन से वर्ड से बना है? डियोन, which means what? ड्यूटी। ठीक है, कि आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान रखना है कि आपकी ड्यूटी क्या बनती है, रिजल्ट्स आपके लिए नहीं मैटर करेंगे, आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। मतलब एक गीता के अंदर लिखा हुआ है ना, निष्काम कर्मा, वो बेसिकली इसको डिफाइन कर रहा है, वो करेक्टली डिफाइन कर रहा है कि इसको डिओंटोलॉजी को, कि बिना किसी उसके ज्यादा सोचे समझे आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, बिल्कुल सही तरीके से आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते जाना है। आपको रिजल्ट्स के बारे में आपको ये नहीं सोचना इसका क्या परिणाम होगा, राइट? आपको सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है, यही मतलब है निष्काम कर्मा का भी। ठीक है, लाइक मोहम्मद सॉरी महात्मा गांधी जी ने क्या बोला हुआ है? महात्मा गांधी जी बोलते हैं ना, क्या?
मीन्स जस्टिफाई एंड्स, मीन्स जस्टिफाई एंड्स। दैट इज द रीजन कि आपके जो मीन्स है, कोई भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना सही मीन्स के चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, आप फिर आप चाहे सही भी रिजल्ट हो, सही चीज नहीं है। तभी महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस, अहिंसा पे टिके हुए थे। उनका वही मीन था, उन्होंने कहा था वो वायलेंस नहीं करनी भैया, नॉन वायलेंस पे ही रहना है। वैसे हम उसका आफ्टर इफेक्ट देख भी रहे हैं, जहां वायलेंस आई उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हम सबको पता है। क्लियर। अच्छा, अब डियोंटोलॉजी की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़े इसके कौन है प्रोपाउंडर? इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट। इनफैक्ट कई बार कॉलिलोक्वली डियोंटोलॉजी को कांटियन फिलोसफी भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये वही बोलते थे इमैनुअल कांट, क्या बोलते थे? मीन्स जस्टिफाई एंड्स। इनका एक इनकी थ्योरी का पार्ट है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वो क्या होता है क्या नहीं, वो आगे देखेंगे जब थिंकर्स पे आएंगे, थोड़ा जब रोल तब बताऊंगा आपको। अभी के लिए इतना समझ लो, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इट इज रिलेटेड टू कांट। ठीक है, एंड दैट मींस जस्टिफाई एंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी अभी के लिए। ठीक है, बट आपसे इतना दिमाग में होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। यस। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं आपको, जो हमने ऑलरेडी जो एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो हमने अभी एग्जांपल्स देखे कि जब आपको एक गवर्नमेंट जो डैम बनाने गई ट्राइबल एरिया के अंदर, वहां पर डिओन्टोलॉजी क्या बोलेगी उनको? डिओन्टोलॉजी ये बोलेगी कि भैया आपका किसी डिफोरेस्टेशन आपका कर्म नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट। आप किसी का घर नहीं उजाड़ सकते, वो आपका कर्म नहीं है, आपके मीन सही नहीं है, तो आप ये काम नहीं करेंगे। एज सिंपल दैट, योर मीन शुड बी राइट। डिओन्टोलॉजी सीधे सीधे यही कहेगी। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कल, ठीक है, कि आपका एक सामने आप खड़े हैं, एक बंदा आ रहा है, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, गूंस, और वो बंदा जाके आपके सामने कहीं पर छुप गया। ठीक है, और आपको पता है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। तो अब वो गुंडे आपसे आके पूछ रहे हैं, गूंस आपसे आके पूछ रहे हैं कि भैया वो कहाँ है, बंदा बता हमें। अब आपको पता है कि अगर आपने उसको सही सही बता दिया तो वो बंदे को जाके मार देंगे, ठीक है, बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं इस बंदे को। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको क्या बोलेगी कि भैया इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, भले ही आपका एक्ट एथिकल, आपका जो मीन्स है, जो आपका काम है वो अनएथिकल हो, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है अगर आपने उसको सही से बता दिया तो। ठीक है, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे, अनएथिकल रहेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होगा, बंदा बच जाएगा, तो आप करेंगे। लेकिन डिओन्टोलॉजी क्या बोलेगी यहाँ पर? डिओन्टोलॉजी ये बोलेगी कि आपका जो कर्म है, आपका जो एक्शंस है, वो एथिकल रहने चाहिए, तो यू शुड नेवर लाई। डिओन्टोलॉजी वाला बंदा उनको सही से बता देगा, वो भले जाके उसका झाम उतार दे। ठीक है, तो ये तरीका, ये चीजें होती है डिओन्टोलॉजी में। यस। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा एग्जांपल सुन के कि डिओन्टोलॉजी तो बहुत ही मतलब खराब डायमेंशन है, हमेशा इससे उल्टे ही काम हो रहे हैं, बट नहीं। डिओन्टोलॉजी समाज के लिए बहुत अच्छी भी होती है। डिओन्टोलॉजी को फॉलो करना सोसाइटी के लिए बहुत सही होता है। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट यू नीड टू चूज। वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि टेलोलॉजी ज्यादा इफेक्टिव है कि डिओन्टोलॉजी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, बाय द वे एग्जाम के अंदर हमेशा आपसे एज अ पब्लिक सर्वेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एज अ सिविल सर्वेंट व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि वहां पे डिओन्टोलॉजी ज्यादा फेवर कर रही है कि टेलोलॉजी। ठीक है, बेसिक बेसिक डाउट है, बच्चों के दिमाग में आते हैं, जब आंसर लिखते हैं तो आते हैं उनके। इसलिए क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपको डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू नीड टू चूज, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बट एट द सेम टाइम दैट व्हाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज डियोंटोलॉजी एथिक्स हैज वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल। ठीक है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, वो क्या है अभी बताता हूँ आपको, बट पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। See, deontological ethics state that those actions are ethical where the means used are right. That is, action itself is ethical. Yes or no? एक्शन जो है वो आपका अपने आप में एथिकल होना चाहिए। ठीक है, टेलियोलॉजी के अंदर आपका एक्शन भले ही एथिकल होना हो, आपका एंड रिजल्ट सही होना चाहिए। एंड रिजल्ट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एथिकल होना चाहिए। एंड रिजल्ट एथिकल है, सही है। एक्शन आपका एथिकल है नहीं है, कुचल जाए, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर जो आप कर्म है, आपका जो एक्शन है, वो आपका एथिकल होना चाहिए। क्लियर? Okay, then this school of thought believes in non-violence, constitutionalism,
रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स एटसेट्रा एज द मीन्स यूज्ड आर राइट। राइट, लॉ को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, एज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, एज अ सिविल सर्वेंट अभी हमने देखा एथिकल डिलेमा में जब फंस गए थे वहां पर, ठीक है, कि लॉ या जस्टिस, तो आपको वहां पे एज अ सिविल सर्वेंट लॉ को फॉलो करना, आपका यही धर्म बनता है। डियोंटोलॉजी उस केस में जब एथिकल डिलेमा में फंसा है बंदा, वहां पर उसके सीधे उनको बोलेंगे भैया आपको लॉ फॉलो करना है, ये आपका धर्म है, ये आपका एथिक्स है, एज सिंपल एज दैट। देन इज Immanuel Kant asked people to do the right thing in itself as it is their duty. राइट, इट इज कई जगह पर ई होता है, कहीं आई डोंट वरी कि भाई इमैनुअल यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा हाँ, इट ही आस्क्ड पीपल टू डू द राइट थिंग इन इटसेल्फ एज इट इज देयर ड्यूटी, आल्सो कॉल्ड एज द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ठीक है, बाय द वे छोटा सा हिंट दे देता हूँ, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव मतलब इंपेरेटिव है, आप पे बाउंड है कि आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ही रहना है, मतलब आपका एक्शन जो है वो सही होना चाहिए, आप बाउंडेड है अंडर दिस डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, करना चाहिए आपको हमेशा, सिंपल। When the action itself is ethical, the behavior is ethical regardless of the consequences. Clear? ठीक है, ओके। सो व्हाट आई वाज आल्सो टेलिंग कि डियोंटोलॉजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताते हैं आपको, ठीक है। हमने टेलियोलॉजी के जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट देखे थे ना, क्या कि वो क्या था, एब्स्ट्रैक्ट था, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड था, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू परफॉर्म। कैसे? आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है, आपको रिजल्ट की परवाह नहीं है, आपको पता है कि आपको एथिकल एक्शन करने हैं, बात खत्म, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, आपको सिर्फ वही करते चलिए, एज सिंपल एज दैट, इसीलिए बहुत इजी होती है अप्लाई करनी भी। राइट, फॉर एग्जाम्पल कोड ऑफ एथिक्स होता है, कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स, वो क्या कर रहे हैं, वो यही है, सिंपली आपको बता दिए कि आपको ये परफॉर्म करना है, बात खत्म, इसके बाहर नहीं जाना आपको, आप चुप करके परफॉर्म करते रहिए। क्लियर? देन इसके अंदर यू डोंट नीड टू डू नो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। किस चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करना, कि आपके जो एक्शन है, ठीक है, उसके कितनों का फायदा हो रहा है, कितनों का नहीं हो रहा है, ये सब इसमें जज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आपको सिर्फ अपना एक्शन परफॉर्म करना है, नो नीड टू डू दैट। ठीक है, नो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी, किसको, मतलब कॉस्ट इन द सेंस कि गुडनेस के टर्म्स में, हैप्पीनेस के टर्म्स में, कितने लोगों की लाइफ में ये पीस लेके आ रहा है, कितने लोगों की लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें लेके आ रहा है, गुडनेस कर रहा है, यस और नो, यूटिलिटी वाले टर्म्स में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना। आई होप आप समझ आ रहा होगा, टेलियोलॉजी में जो मैंने आपको बताया था वहां पर आपको करना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना। क्लियर होगी बात? ठीक, सो दीज आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डियोंटोलॉजी एज वेल। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज योर वर्च्यू एथिक्स। ठीक, तो वर्च्यू क्या होता है, पहले फटाफट इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, वर्च्यू क्या था, वो वाली वैल्यूज, वो वाली वैल्यूज जो कि आपके कैरेक्टर का पार्ट बन गई है, पॉजिटिव वैल्यूज रादर, वो वाली पॉजिटिव वैल्यू जो कि आपके कैरेक्टर का पार्ट बन गई है, कैरेक्टर में आपने इम्बाइब कर ली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ठीक है, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर वर्च्यूज। एरिस्टोटल बहुत फेवर करते थे वर्च्यूज को। ठीक है, आएंगे जितने भी फिलोसफर थिंकर हैं आपके आएंगे, बीच बीच में बताता रहता हूँ सो दैट आपके दिमाग में बैठ से चले जाए। राइट, ओके। सो वर्च्यू एथिक्स में जो है बेसिकली, ये आपके एक्शन को ना देख के ना, ये आपके कैरेक्टर बेस पे है कि भैया ये क्या बोलता है कि आपको अपना जो कैरेक्टर है वो हमेशा वर्चुअस रखना है। कि आपको हमेशा अपना कैरेक्टर वर्चुअस रखना है, वर्चुअस रहना है हमेशा अपने आप को। तो इसमें क्या होगा कि जो भी एक्शन लेता है ना बंदा, कोई काम करता है, तो वो ये नहीं कहते कि भाई इसका एक्शन एथिकल था, उससे हमेशा ये जज किया जा रहा होगा कि ये बंदा वर्चुअस है, तो हेंस जो भी एक्शन लेगा वो एथिकल ही होगा। एक्शन से उसके कैरेक्टर को जज कर रहे होंगे यहाँ पर। समझ आ रही है चीज? थोड़ा सा डिफरेंट है ये। जो हमने दो पहले टेलियोलॉजी डियोंटोलॉजी देखी, वहां पर आपके एक्शन को जज किया जा रहा होता है खाली, यहाँ पर कैरेक्टर पे बात आ जाती है, कैरेक्टर वर्चुअस होना चाहिए। क्लियर? ओके, सो सी वर्चुअल एथिक्स में बेसिकली एक और चीज बताते हैं आपको। वर्चुअल एथिक्स मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर वर्चुअस हैबिट्स को परफॉर्म करना है।
आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप वर्चुअस हैबिट्स अपने अंदर इम्बाइब करते रहिए, हमेशा उस पर स्टिक रहिए। लाइक फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर जो है वो रिफ्यूज कर देता है अपनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रिलीज करने से। उसके पास एक ऑफर आया कि भैया हमें अपनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे दो, हम आपको इतने ही पैसे दे देंगे उसके बदले में, ठीक है, आपका कुछ किसी को कुछ पता लगेगा नहीं, बस हमें ये इन्फॉर्मेशन से यूज करके हमारा ही फायदा हो जाएगा और आपका भी। बट वो मैनेजर क्या करता है, वो मैनेजर वर्च्यू अपने ऑनेस्ट वाली जो वर्च्यू है, अपने जो कैरेक्टर है, हैबिट है, ठीक है, उसको फॉलो करता है और ऑनेस्ट रहता है और मना कर देता है। तो यहाँ पर उन्होंने वर्च्यू एथिक्स यही बोल रही है उनको कि भैया बंदे ने अपनी वर्चुअस हैबिट को फॉलो किया, ठीक है, ऑनेस्ट रहा, ठीक है, उसको और कुछ नहीं करना, क्या करना चाहिए, एक्शन पे नहीं ध्यान दिया, उसको बस अपनी वर्चुअल कैरेक्टर में को मेंटेन करके रखना है। ये जो है आपकी वर्चुअल एथिक्स बेसिकली ये पर्सन सेंट्रिक रहती है या पीपल सेंट्रिक रहेगी, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है ये, नॉट एक्शन ओरिएंटेड। ये बात करेगी कि भाई बंदा आप अपने कैरेक्टर को मेंटेन करे रखिए, वर्चुअस कैरेक्टर को मेंटेन करके रखिए, यहाँ पर उसी चीज को जज किया जा रहा होता है और कुछ नहीं जज करते इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि जो पेरेंट्स, ठीक है, दो पेरेंट्स शुड डेफिनेटली हैव पेशेंस, पेरेंट्स को हमेशा बच्चों की बात को पेशेंटली सुनने वाली जो वर्चुअस हैबिट है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, सो दैट एक गुड रिलेशन मेंटेन करके रखे हमेशा इसी वजह से, ठीक है, जो पेरेंट्स उनके अंदर रहना चाहिए। तो वर्चुअल एथिक्स यही कहता है कि पेरेंट्स को अपने अंदर पेशेंस जो है, वो वाला जो वर्च्यू है, वो वाला जो हैबिट है, उसको अपने अंदर एम्बाइब करके रखना है। क्लियर हुई बात, यस और नो? तभी एरिस्टोटल ने भी क्या बोला है कि बाय ऑनरिंग, ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या बोला है इसके लिए, बाय ऑनरिंग वर्चुअस हैबिट्स, बाय ऑनरिंग वर्चुअस हैबिट्स पीपल विल लाइकली मेक, पीपल विल लाइकली मेक राइट चॉइसेस, people will likely make right choice when faced with ethical challenge। ठीक है, it summarizes, it summarizes, right, the virtual ethics। तो वर्चुअल एथिक्स का प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल एथिक्स, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल एथिक्स, एन एक्टिविटी इज राइट, एन एक्टिविटी इज राइट only if it is something, only if it is something a virtuous person will do। क्लियर है, यस और नो? आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ से। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द डेफिनेशन एस्पेक्ट, ठीक है, सारी चीजें बच्चों जॉट डाउन करते रहा करो साथ साथ, ठीक है, वीडियोस को बार बार चला के टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, आपको एक ही बार ही देखनी है, फटाफट करके नोट्स बना के बात खत्म। देन virtue ethics states that those actions are ethical which are in line with certain virtues, yes, okay, then this school believes in always acting in a particular manner such that we pursue a particular virtue, right, such virtuous actions are seen as ethical as well as leading to a good life, right, okay, for example Aristotle said that the following, the golden mean, middle path, ठीक है, गोल्डन मीन एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है उसमें आगे देखेंगे जब बात करेंगे, इज द राइट थिंग टू डू एंड लीड्स टू सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, ठीक है, वर्च्यू एथिक्स जो है बेसिकली सोक्रेटिस, आपके सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, ठीक है, प्लेटो, ये मेन प्रोपाउंडर्स हैं इस थ्योरी के, राइट, तो और गोल्डन मीन
गोल्डन मीन को सिंपली आप इतना समझ लिया कि वर्च्यूज को मेंटेन कर रखना है आपने। गोल्डन मीन यही कहते हैं कि आपको यू नीड टू मेंटेन योर कैरेक्टर वर्च्यू, वर्च्यू के साथ रहना है हमेशा आपने, इतना समझ लिया अभी। ठीक है, ये मेन प्रोपाउंडर है। हाँ ओके, so with this virtue ethics is also done. Now let's come on to the next topic, which is descriptive ethics. डिस्क्रिप्टिव हमने देख ली। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट कल्चर्स की ये कंपेयर करता है बेसिकली। क्या कंपैरिजन चलेगा यहाँ पर बिटवीन डिफरेंट कल्चरल एथिक्स, कहीं ना कहीं कल्चरल एथिक्स कह सकते हैं या फिर डिफरेंट एथिक्स ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, उनमें सोसाइटीज में कल्चर्स के अंदर जो उनकी एथिक्स उनका कंपैरिजन चलता है कि भाई यहाँ पर ये है, इस हिंदू एथिक्स के अंदर ये है, मुस्लिम एथिक्स के अंदर ये है, या फिर इंडियन एथिक्स के अंदर ये है, यूएस में जो एथिक्स है वहां पर ये चीजें चलती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो दीज थ्योरीज एक्सप्लेन व्हाट पीपल एक्चुअली डू। They describe the ethical standards followed by various individuals, societies, cultures, etc. They also explain how ethical standards develop and what factors shape the ethical standards. ये बेसिकली उन सभी जो डिफरेंट एथिकल एथिक्स है ना सोसाइटी के, उनको डिस्क्राइब करता रहता है कि ये इस पर्टिकुलर सोसाइटी में ये वाले एथिक्स हैं, यहाँ पर ये वाले एथिक्स हैं, उस वाली सोसाइटी में ये एथिक्स हैं। उनसे आप कुछ ना कुछ चीजें निकाल सकते हैं, डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन चलती है यहाँ पर क्या डिफरेंट एथिक्स की और डिफरेंट सोसाइटीज की, हेंस द नेम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। क्लियर, दिस मच इज इनफ फॉर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। इतना जान लिया तो लाइफ जिंगा लाला। चलो, फॉर इंस्टेंस देयर आर टू स्कूल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स नोन एज एथिकल रिलेटिविज्म एंड एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है, इन केस हास यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल। ठीक है, कि इसके अंदर भी आपके दो स्कूल्स हैं, एक है आपका एथिकल रिलेटिविज्म और एक एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। ठीक, वो क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूटिस्ट क्लेम दैट सम एथिकल नॉर्म्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड अप्लाई टू एवरीवन एवरीवेयर रिस्पेक्टिव ऑफ कंटेक्स्ट और सर्कमस्टांस, राइट। हमें पता है कि लाइक मर्डर करना है वो ये है यूनिवर्सली अनएथिकल है। एब्सोल्यूटिस्ट क्या बोलेंगे यहाँ पर, अगेन हमने पहले भी देखा है ये, ठीक है, कि रिलेटिविज्म और एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म क्या बोलेंगे, भैया कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो हर जगह अनएथिकल है या फिर एथिकल है। और रिलेटिविज्म क्या कहेगा कि भैया कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं एथिक्स के, वो पर्टिकुलर सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। कई जगह पे एथिकल होगा, कई जगह पे वो अनएथिकल होगा। फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी, राइट, यही यहाँ पर है। ठीक, on the other hand relativists claim that the ethical norms depend upon the place and time and thus vary with context. They acknowledge the role of social diversity across the world. Yes or no? ठीक, for example polygamy or sexual identity is seen very differently in different societies. We know about it. Clear हुई ये बात? Yes. Okay, so now this is also over. Let's move on to the next topic, which is meta ethics. See, जब वर्ड आ जाए ना मेटा, तो ये क्या बन जाता है, बेसिकली फिलोसफी की एस्पेक्ट बनती है इसके अंदर। फिलोसफी क्या होते हैं, फिलोसफी क्वेश्चंस पूछती रहती है, व्हाट, व्हाई, हाउ। इन द सेम वे मेटा एथिक्स में क्या पूछा जाता है, एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है कि भाई क्यों है एथिक्स, कहाँ से आई एथिक्स, क्यों, काय, किस लिए, राइट। उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, सी, these theories deal with the very basic idea of ethics. They deal with the fundamental abstract issues like what is meant by ethics. Yes, कि what is ethics, क्या मीनिंग होता है, why should we be ethical, कि भैया हमें एथिकल होने के लिए क्यों बोल रहे हो आप, क्या रीजन होगा इसका, किस लिए बोले जा रहे हो आप। ठीक है, गुड करके क्या होगा, अच्छा करके क्या होगा। इज एथिक्स एन एब्सोल्यूट रियलिटी और अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्या एथिक्स सच में कुछ है या वैसी हमने फर्जी बना रखी है चीजें, कि रियलिटी में होती है एथिक्स कि नहीं होती। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमेशा फिलोसफी में बेसिकली इस टाइप की चीजें ही पूछी जा रही होती हैं। जब मेटा वर्ड आ जाए मतलब समझ जाया करो। ठीक, दे आर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज, दे आर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज व्हिच आर डेल्ट विद बाय थिंकर्स, फिलोसोफर्स एंड रिसर्चर्स। आपकी जो मेटा एथिक्स है, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट नेचर में, बहुत वेरी करेगा यहाँ पर। यस,
आपको बेसिकली क्या जानना है मेटा एथिक्स में, कि यहाँ पर जो है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डीप क्वेश्चंस, डीप इन द सेंस कि व्हाट इज मेंट बाय एथिक्स, व्हाई वी नीड टू बी एथिकल, क्या एथिक्स रियलिटी में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, क्या एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म तो नहीं है, सोशल कंस्ट्रक्ट तो नहीं है, कुछ है इसकी फिजिकल बेसिस भी इसका कुछ है कि नहीं है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, these theories become the basis on which descriptive, prescriptive and applied ethics are built upon. मेटा एथिक्स कवर ब्रॉडली टू डोमेन्स। ठीक है, अभी देखते हैं कौन से डोमेन है उसके आगे। आपको सिर्फ बेसिक ही थ्योरी जाननी है, दिस मच इज इनफ, डोंट गो मच इन डीप इनटू इट, नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जाम दैट मच। तो दो कौन से डोमेन है इसके, एक मेटा इशू और एक मेटा मेटा फिजिकल इश्यूज। ठीक है, जब मेटा इश्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा होता है, कोर ऑफ द कोर इश्यूज लाइक व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल। ठीक है, व्हाट इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, रीजन और इमोशन एंड सो ऑन। ठीक है, जो बेसिक कोर क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे होंगे कि भैया आपको एथिकल होना क्या है। जो बताया ना मैंने मेटा एथिक्स की डेफिनेशन में ही है, जो की डिटर्मिनेंट क्या है एथिक्स के। हमने ऑल्दो देखे स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट किसको बोल रहे हैं किसको नहीं, स्टार्टिंग में देखा ना हमने, काफी सारे टॉपिक्स हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स ये सब आया कहाँ से, मेटा एथिक्स से ही डिराइव हुआ है। मेटा एथिक्स ने ये क्वेश्चन पूछने शुरू करे तो इसका आंसर की सर्च करी स्टार्ट हुई, तभी हमारे सामने आंसर्स आए हैं। यस और नो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिलोसोफर्स लाइक आयन रैंड। ठीक है, आयन रैंड यूज रीजन एज द बेसिस फॉर एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, और वहीं आपके शी सेज दैट रेशनल इगोइज्म शुड बी द बेसिस ऑफ ह्यूमन चॉइस। इन्होंने रीजन दिए, ठीक है, कि क्या एथिक का बेसिस क्या होना चाहिए, क्या आपकी चॉइसेस होनी चाहिए, या फिर डिटर्मिनेंट बताया बेसिकली कि व्हाट शुड बी द डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। रैशनल इगोइज्म, अब ये होता क्या है क्या नहीं, डोंट गो इनटू दैट। ठीक है, इतने की जरूरत नहीं। आप दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, क्या, कि महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि ह्यूमन कॉन्शियस इज द बेसिस ऑफ एथिकल नॉर्म्स। आपके अंदर की जो आवाज है वही डिसाइड कर लेगी एथिक्स को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वही आपका डिटर्मिनेंट है। यस और नो। अगर किसी को स्टिल ये जानना है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, वहां बता दूंगा उनको, डोंट वरी अबाउट इट। ईगोइज्म वर्ड बेसिकली जब आ जाता है तो आपके सेल्फ बीइंग की बात होती है वैसे, कि लाइक रैशनल बीइंग हो आप, जो आपके अंदर के जो मैन को एक रैशनल बीइंग ही माना जाता है, उससे लिंक्ड है ये। दैट्स इज द रीजन आई एम टेलिंग यू डोंट गो डीप इनटू इट। ठीक है, इतने नेसेसरी नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो आई विल टेल यू दैट। देन हाँ, गांधी जी वाली बात हो गई। गांधी जी ने क्या बोला था कि ह्यूमन कॉन्शियस, ठीक है, वही बेसिक्स है, बेसिस है, वही डिटर्मिनेंट है आपका ethics का। He states that our inner voice can be used as an ethical guide in times of dilemmas, and such voice holds highest value. Clear? So this is it. Meta issues. Then second is metaphysical issues. ये क्या बात कर रहे हैं कि भैया सेकंड एस्पेक्ट थी ना जो मेटा एथिक्स के अंदर देखा था हमने, कि क्या एथिक्स रियलिटी है या सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्या सच में इसका कोई बेस है, कुछ है भी कि नहीं है, या ऐसी बातें चलाए जा रहे हो आप। ठीक है, वही देखा जाता है। दिस ब्रांच डील्स विद कॉस्मिक इश्यूज लाइक व्हाट वेदर एथिक्स इज एन एब्सोल्यूट कॉस्मिक रियलिटी और अ सोशल कंस्ट्रक्ट। राइट, फॉर एग्जांपल भगवत गीता proclaims that every entity, be it energy, soul, molecule, plant, etc., has their path laid down which they must follow in order to attain salvation. ठीक है, according to this ethical standards for the entire cosmic universe and not just mankind. ये क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि यस, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, सोशल रियलिटी में है कि नहीं है। तब इन्होंने भगवत गीता का एग्जांपल दिया कि भगवत गीता के अंदर बताया हुआ है कि पूरी यूनिवर्स के लिए डिफाइंड है एथिक्स। एथिक्स एक रियलिटी है। ठीक है, एथिक्स सिर्फ ऐसे सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, सिर्फ हवाई बातें नहीं है, इट एक्चुअली एग्जिस्ट। राइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मेटा एथिक्स एज वेल। नेक्स्ट पार्ट है आपका अप्लाइड एथिक्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली यू लाइक दिस लेक्चर। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी, कमेंट सेक्शन में मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। राइट, वी आर हियर फॉर यू टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, टू हेल्प यू आउट इन योर पंजाब पीसीएस मेंस एग्जाम। Right, so with this I wish you good luck for your future endeavors, and until our next lecture, take care and bye bye. Thank you.